Hello friends, in this video we are going to discuss about chemical properties of alkenes and we will also discuss Markovnikov rule and peroxide effect. Alkenes are the rich source of loosely held pi electrons due to which they show addition reactions in which the electrophiles add on to the carbon-carbon double bond to form the addition products. So we can say that electrophilic addition reactions are the characteristic reaction of alkenes. Some reagents also add by free radical mechanism. Now let us discuss some electrophilic addition reactions. Addition of dihydrogen. Alkenes add up one molecule of dihydrogen gas in the presence of finely divided nickel, palladium or platinum to form alkanes. Addition of hydrogen means hydrogenation, and this hydrogenation is taking place in the presence of catalyst. That's why this is also known as catalytic hydrogenation. See the reaction: ethene plus H2, this is catalyst, convert into ethane. The same way, propene plus H2 in the presence of catalyst, we will get propane. Addition of halogens. Halogens like bromine or chlorine add up to alkene to form vicinal dihalides. Vicinal dihalides means dihalides in which two halogens are attached to adjacent carbon atoms. Clear? However, iodine does not show addition reaction under normal conditions. The reddish orange color of bromine solution in carbon tetrachloride is discharged when bromine adds up to an unsaturation site. This reaction is used to a test for unsaturation. This is ethene plus Br2, CCl4 is a solvent. This pi bond will break and these two bromine atoms will add across this pi bond, that is to this carbon and this carbon, adjacent carbon. So this we will get vicinal dihalide, this one, and its name is 1,2-dibromoethane. This is propene. When reacts with the Cl2, again this pi bond will break, one Cl will add to this carbon and one Cl will add to this carbon, and we will get this 1,2-dichloropropane. Okay. Now addition of hydrogen halides. Hydrogen halides HCl, HBr, Hi add up to alkenes to form alkyl halides or haloalkanes. The order of reactivity of the hydrogen halides is Hi, then HBr, then HCl. Means Hi is most reactive and HCl is least reactive. This is the example of electrophilic addition reaction. Now, addition reaction of HBr to symmetrical alkenes. Now, what is the meaning of the symmetrical alkenes? Symmetrical alkene means similar atoms or groups attached to double bonded carbon atoms. Okay, देखिए ये है इथीन, ये और ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इस पे भी दो हाइड्रोजन है, इस पे भी दो हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेम एटम्स जुड़े हुए हैं. दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन. इसी तरह से ये ब्यूट टूइन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक CH3, इस वाले कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन एक CH3. सो दिस इज आल्सो द सिमेट्रिकल एल्कीन. और जब इथीन HBr के साथ ऐड करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Br एक कार्बन के ऊपर और H दूसरे वाले कार्बन पर जाएगा, एंड वी विल गेट दिस CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन. इस ब्यूट टूइन पर जब HBr ऐड करेगा तो H किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर और Br दूसरे वाले पे जाएगा, एंड विल गेट दिस वन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 2-bromo-butane. ओके. नाउ एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हों. जैसे प्रोपीन, प्रोपीन में ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है एक CH3 है, जबकि इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन है. सो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. When HBr adds to propene, the two possible products are first and second. ये दो प्रोडक्ट है पॉसिबल,
2 bromopropane and 1 bromopropane, but this 2 bromopropane is major and 1 bromopropane is minor. मेजर मीन्स ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनता है. ओके, इसमें ये Br इस वाले कार्बन पर ऐड हुआ है और इस 1 ब्रोमोप्रोपेन में Br इस वाले कार्बन पर ऐड हुआ है. ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मार्कोनिकोव रूल. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल. ओके, मार्कोनिकोव रूल. Its statement: negative part of the adding molecule gets attached to that double bonded carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atoms. यानी कि जो मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है. ओके, उसकी अमाउंट ज्यादा बनेगी. तो इसमें देखिए आप, इस HBr के अंदर Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अंदर इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है. तो ये Br इस वाले कार्बन पर ऐड होगा. ओके, एंड वी विल गेट द मेजर प्रोडक्ट एज 2 ब्रोमोप्रोपेन. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म. यानी कि मार्कोनिकोव रूल जिस मैकेनिज्म को फॉलो करता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग. इलेक्ट्रॉन लविंग मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज. सो HBr provides an electrophile H+, which attacks the double bond to form carbocation H. देखिए ये प्रोपीन, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां से आया? ये इस HBr से. तो इस इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ये पाई इलेक्ट्रॉन या तो कार्बन 1 पर शिफ्ट होंगे या कार्बन 2 पर शिफ्ट होंगे. तो यदि मान के चलें कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन यदि इस कार्बन पर शिफ्ट हुए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. H+ किस पे जाएगा? कार्बन 1 पे H+ ऐड होगा तो हमें ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा. ठीक है, और यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो H+ किस पे जाएगा? इस सेकंड वाले कार्बन एटम पे H+ जाएगा तो ये हमें ये वाला कार्बोकैटायन मिलेगा. ठीक है, अब देखिए दोनों कार्बोकैटायन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? दिस इज CH3 CH2 CH2, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है और इसमें ये CH3 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है. ये प्राइमरी कार्बन है, दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन. और इसमें ये कार्बन सेकेंडरी है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप कह सकते हैं दिस इज ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन. आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर स्टेबल? प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल. ठीक है, तो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर बनेगा. तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो H+ का काउंटर पार्ट है यानी कि Br- वो इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर ऐड होगा एंड वी विल गेट द 2 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, कुछ अमाउंट इस प्राइमरी कार्बोकैटायन से भी हमें मिलेगी लेकिन उसकी अमाउंट माइनर होगी. ओके, नाउ एंटी-मार्कोनिकोव एडिशन और peroxide इफेक्ट और खरास इफेक्ट. In the presence of peroxide, addition of HBr to unsymmetrical alkenes like propene takes place contrary to the Markovnikov rule. This happens only with HBr but not with HCl and HI. This addition reaction was observed by M.S. Kharas and F.R. Mayo in 1933 at the University of Chicago. That's why this reaction is also known as peroxide effect or Kharas effect or addition reaction anti to Markovnikov rule, or simply we can say anti-Markovnikov addition. Now CH3CH double bond CH2, this is propene unsymmetrical alkene, this is HBr. इस HBr में ये Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है और एडिशन कैसे होगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल के अगेंस्ट होगा. तो Br उस कार्बन पर जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. तो ये Br इस वाले कार्बन पर जाएगा और ये H इस वाले कार्बन पर जाएगा और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? पेरोक्साइड. ये है आपके पास बेंजोइल पेरोक्साइड. ठीक है, और प्रोडक्ट हमें मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट. क्लियर? नाउ मैकेनिज्म. पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म. और ये मैकेनिज्म को इस तरह से समझ सकते हैं आप. बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड.
C6H5, C के साथ में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये दो ऑक्सीजन, एक्चुअली जब दो ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड से तो ये बोलता है परऑक्साइड बॉन्ड। ओके, दिस इज C डबल बॉन्ड हो C6H5। होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस का मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, तो हमें ये मिलेगा फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल फिर ब्रेक होगा और हमें मिलेगा फिनाइल फ्री रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये फिनाइल फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा एंड वी विल गेट द ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्लियर? And then this bromine free radical will attack to this unsymmetrical alkene that is propene, और यहाँ पर फिर इस बॉन्ड में से इसका होमोलाइसिस होगा पाई बॉन्ड का। ओके, तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ये Br इस वाले कार्बन पर भी ऐड हो सकता है और ये Br इस वाले कार्बन पर भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो यदि ये Br इस वाले कार्बन पर ऐड होता है तो हमें मिलेगा ये फ्री रेडिकल। ठीक है, नाउ दिस इज अ प्राइमरी फ्री रेडिकल, क्योंकि ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो प्राइमरी कार्बन पर है और दिस इज लेस स्टेबल। दूसरी पोजीशन है, यदि Br आपके पास इस वाले कार्बन पर ऐड हुआ तो हमें मिलेगा ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल विच इज मोर स्टेबल। ठीक, तो डेफिनेटली जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा अमाउंट में बनेगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल कम अमाउंट में बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल फिर HBr के साथ अटैक करेगा, तो HBr का ये H इस वाले कार्बन पर ऐड होगा और वापस ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल वापस इस रिएक्शन में काम आएगा। ओके, इन दिस वे वी विल गेट द 1 ब्रोमो प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ओके, and when this primary free radical react with the HBr, again homolysis taking place, we will get the minor product M, that is 2 bromopropane। तो ध्यान रखिए आप, परोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है और यदि परोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। Peroxide effect is not observed in addition of HCl and Hi. This may be due to the fact that the HCl bond being stronger than HBr bond is not cleaved by the free radical, whereas the Hi bond is weaker and iodine free radicals formed, but these iodine free radicals combine to form iodine molecules instead of adding to the double bond। क्लियर? रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, अच्छे से समझ लीजिए। HCl में क्या होता है, HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इसी वजह से ये फिनाइल फ्री रेडिकल से ब्रेक नहीं होगा, जबकि Hi के अंदर वीकर बॉन्ड है, आयोडीन फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन दो आयोडीन फ्री रेडिकल मिल करके आयोडीन मॉलिक्यूल बना देंगे और वो आयोडीन फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस peroxide effect is only observed in addition of HBr। Now problem 13.12, write IUPAC names of the products obtained by addition reactions of HBr to Hex-1ene in the absence of peroxide and in the presence of peroxide। तो सबसे पहले आपको Hex-1ene का फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर बनानी है, तो दिस इज Hex-1ene। क्लियर? HBr के साथ एडिशन हो रहा है व्हेन नो peroxide, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ peroxide, तो एडिशन कैसे होगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, इस एडिंग मॉलिक्यूल का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जिसके पास में लेसर नंबर में हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये Br इस वाले कार्बन पर ऐड होगा और H इस वाले कार्बन पर ऐड होगा एंड वी विल गेट दिस वन, दिस इज 2 ब्रोमोहेक्सेन। क्लियर? और peroxide की प्रेजेंस में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, तो Br उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये इस पे जाएगा Br, और H किस पे जाएगा, H यहां पर जाएगा, तो हमें ये मिलेगा प्रोडक्ट और इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमोहेक्सेन। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैप्टर।